statement of profit and loss caption, step to 5 audit of items of financial statement. तो शुरू करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L कैप्शन, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. तो सेल्स और कलेक्शन साइकिल जो है इन अ बिजनेस रेफर करती है सेट ऑफ प्रोसेसेस जो बिगिन होते हैं जब कस्टमर जो है परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज, और ends when the entity जो है रिसीव कर लेते हैं complete payment against the sale. तो sales and collection cycle refers to the set of process that begins when a customer purchases the goods or services और end होता है जब entity जो है receive कर लेती है complete payment against the sales. So sale is one of the most important item in the financial statement which will have a considerable effect on the profits generated, closing stock, etc. Now, as per SA 315, the risk of material misstatement in case of revenue items is generally high. So, as part of the year end audit of an entity का financial statement, auditor test करता है sale transactions और internal control over those transaction ensure करने के लिए कि entity जो है material misstating नहीं कर रहे उसके revenues को और accounts receivable को. तो ये है revenue की cycle, sales का जनरल, अकाउंट रिसीवेबल लिस्टिंग, कैश चेकलिस्ट एंड डिपॉजिट स्लिप. नाउ ऑडिटर को जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और उसके रेवेन्यू सेंटर्स की. एग्जांपल जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो एंटिटी प्रोवाइड कर रही है, डिमांड उस सर्विस की और प्रोडक्ट की. तो type of services or product the entity provides, demand for the services or products, major selling product services, introduction new product service line का या फिर discontinuing product or service की major customer sales terms, credit और cash sales. तो ऑडिटर को जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है मैनेजमेंट की कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रोसेस. तो ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल, दैट इज मैनेजमेंट कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रोसेस. Now, whether segregation of duties exist, जहाँ segregation of duties exist करनी है, चेक करो क्रेडिट लिमिट को, ऑथराइज करो सेल्स ऑर्डर्स को, रेस करो सेल्स इनवाइस और देखो कि कब और कैसे जो है गुड्स डिलीवर और डिस्पैच हुए हैं या सर्विस प्रोवाइड हुई है, किसने जो है कलेक्ट किया और रिकॉर्ड किया अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स. इंश्योर करो कि जो रिक्स और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर्ड हो चुके हैं टू द कस्टमर एंड हाउ द सेल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द सिस्टम. तो जहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है, चेक करो क्रेडिट लिमिट को इफ एप्लीकेबल, देख हु ऑथराइजेस सेल ऑर्डर, who raises sales invoice, when and how the goods are delivered or dispatched or services are provided, who collects and records the amount received from debtors, कौन इंश्योर करते हैं कि रिक्स और रिवॉर्ड्स जो ट्रांसफर हुए हैं टू द कस्टमर, कैसे जो सेल्स है रिकॉग्नाइज हुई है सिस्टम में. तो whether segregation of duties exists, check the credit limit. If applicable, who authorizes the sales orders, who is the sales line, when and how the goods are delivered and dispatched or services are provided, who collects and records the amount received from debtors, who ensures that risk and rewards जो है ट्रांसफर हो चुके हैं टू कस्टमर, how the sales have been recognized in the system, कैसे जो है सेल्स रिकॉग्नाइज हुई है सिस्टम में. ना अब ऑडिटर को टेस्ट करने कंट्रोल्स द एंटिटी is set up for the sales cycle. तो ऑडिटर टेस्ट द कंट्रोल्स द एंटिटी is set up for the sales cycle to determine how strong and reliable they are. डिटरमाइन करने के लिए वो कितने स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है रिड्यूस हो जाएगी, और अगर नहीं है तो हम 265 के हिसाब से डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करेंगे TCWG को. तो यही दे रखा है. An auditor tests the controls of the entity has set up controls the entity has set up for the sales cycle to determine how strong and reliable they are. If they are strong and operating effectively, अगर वो strongly operate करे effectively, तो auditor जो है reduce कर सकता है extend substantive testing का, और any deficiencies in the control shall be communicated as per SA 265. अब कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द सेल्स साइकिल जो है इंक्लूड करता है प्री नंबर्ड सेल इनवॉइसेस, प्रॉपर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन सेल ऑर्डर्स का, कस्टमर का परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन ओवर अ सर्टेन लिमिट और ऑथराइजेशन ओवर रिसीवेबल्स राइट ऑफ्स का. तो कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द सेल साइकिल क्या इंक्लूड करता है? प्री नंबर्ड इनवॉइसेस, customer का purchase order authorization over a certain limit, proper authority for approval of orders, execution sales order का,
over receivables write-off though. Common control over sales cycle include pre-numbered sale invoice, proper authority of sale, approval of orders, execution of sales order या फिर customer purchase order authorization over certain limit and authorization over receivables write-off. नाउ ऑडिटर को सेलेक्ट करना है रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन को, तो ऑडिटर सेलेक्ट्स अ रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन और एग्जामिन करता है रिलेटेड कस्टमर के परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेज और कस्टमर स्टेटमेंट। इंश्योर करने के लिए जो कंट्रोल टेस्टिंग हुए हैं वो नंबर्ड है सेल इनवॉइस, और ये एनेबल करेगा ऑडिटर को डिटरमाइन करने में एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू बी अप्लाई। तो वो सेलेक्ट करता है रैंडम सेलेक्ट सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस, रैंडम सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करता है, एग्जामिन करता है रिलेटेड कस्टमर के परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस और कस्टमर के स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस एंड कस्टमर स्टेटमेंट इंश्योर करने के लिए दैट जो कंट्रोल है बीइंग टेस्टेड इज अ नंबर्ड सेल्स इनवॉइस, और ये इनेबल करेगा ऑडिटर को डिटरमाइन करने में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। अब ऑडिटर जो है इंश्योर करता है दैट ऑल नंबर्स इन द सेक्शन आर अकाउंटेड फॉर, सारे नंबर्स जो है एक सेक्शन में अकाउंट हो चुके हैं और कोई भी मिसिंग नहीं है। नाउ परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स जो है मस्ट है। सब्सटेंटिव ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर कंसर्न्स करता है सेल्स ट्रेंड एनालिसिस दैट इज कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज एनालिसिस जो कि एनालिसिस दैट ऑडिटर मे फाइंड रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, या फिर बिल्डिंग करना सेल्स एक्सपेक्टेशन और कंपेयर करना दैट विद क्लाइंट के सेल्स रिकॉर्ड से। तो ऑडिटर विल need to know the sales price of the product or service over the year and monthly average sale price per product or service discount policy। तो परफॉर्म करना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स मस्ट है। सब्सटेंटिव ऑडिट का प्रोसीजर सेल्स ट्रेंड एनालिसिस दैट इज कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, या फिर कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस जो एनालिसिस जो मोस्ट रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है, बिल्ड करना सेल्स एक्सपेक्टेशन को और कंपेयर करना उसको एंटिटी के क्लाइंट के सेल रिकॉर्ड से, और ऑडिटर को जानना है सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द ईयर, मंथली एवरेज सेल प्राइस पर एंड प्रोडक्ट। ये 1500 इंटू 10 15,000 ऐसे दे रखा है। बिलो टेबल समराइज करती है ऑडिट प्रोसीजर जो जनरली रिक्वायर्ड है टू अंडरटेकन वाइल ऑडिटिंग सेल्स को ऑडिट करते हुए। तो रिकॉर्डेड सेल्स रिप्रेजेंट करता है गुड्स शिप्ड या फिर सर्विसेज परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज अक्रेंस। ओ सी। तो इंश्योर करना कि रेवेन्यू जो है ओवरस्टेटेड नहीं है परफॉर्म करके फॉलोइंग प्रोसीजर्स। तो चेक करना कि सिंगल सेल्स इनवॉइसेस कोई दो बार तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया, कैंसिल सेल इनवॉइस को भी तो रिकॉर्ड नहीं कर लिया। तो चेक करो whether a single sales is recorded twice, check whether a single sale is recorded twice, or a cancelled sales invoice could also be recorded. तो check करना whether the single sales invoice is recorded twice or a cancelled sale invoice could be also be recorded. Test check करो few invoices with their relevant entries in sales journal. Test check करना few invoices को with their relevant entries in sales journal. तो पहले क्या बोल रहे हैं कि चेक करो वेदर सिंगल सेल्स इनवॉइस कोई दो बार तो रिकॉर्ड नहीं हो गया, कैंसिल सेल्स इनवॉइस को तो नहीं रिकॉर्ड कर लिया। फिर टेस्ट चेक करो फ्यू इनवॉइसेस को उनके रिलेवेंट एंट्रीज के साथ इन सेल्स जनरल। ऑब्टेन करो कंफर्मेशन कुछ कस्टमर से इंश्योर करने के लिए जेन्युइननेस उस सेल ट्रांजैक्शन की, कोई फिक्टिशियस कस्टमर या सेल तो नहीं रिकॉर्ड हो गई, ये भी देखना है। तो ऑब्टेन करना कंफर्मेशन फ्रॉम फ्यू कस्टमर्स टू इंश्योर genuineness of same transaction and whether any fictitious customers and sales have been recorded। तो पहला तो देखना कि कोई इनवॉइस दो बार, whether a single sales invoice is recorded twice, check whether a single sales invoice is recorded twice or cancelled sales invoice could also be recorded, या फिर टेस्ट check few invoices with their relevant entries in sales journal। obtain करना confirmation few customers से ensure करने के लिए genuineness of sale transaction। देखो कि वेदर कोई फिक्टिशियस कस्टमर या सेल्स तो नहीं रिकॉर्ड हुई है, और शिपमेंट्स जो कोई शिपमेंट्स तो नहीं हो गए बिना कंसेंट के भाई, मतलब कस्टमर ने आपको बोला ही नहीं है, मतलब गुड्स सेल की मतलब आपसे कुछ परचेस किया ही नहीं तो भी आप उसको बेच रहे हो, तो वो तो ऑब्वियस से पता ना कि रिटर्न कर देगा। तो दैट इज व्हाट हियर इट इज सेइंग कि वेदर एनी शिपमेंट्स वर डन विदाउट द कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर स्पेशली एट द ईयर एंड टू इन्फ्लेट द सेल्स फिगर। फिर अनअर्न रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दिया एज अर्न, या फिर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट कलेक्टिबिलिटी, या फिर कस्टमर का ऑब्लिगेशंस आर कंटीजेंट और अदर एक्शंस।
फिर रिव्यू करना सीक्वेंस सेल्स इनवॉइस का, रिव्यू करना जनरल एंट्री अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो रिव्यू करो सीक्वेंस, दो चीज़ें रिव्यू करनी है, जनरल एंट्री अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए और एक सेल्स इनवॉइस का सीक्वेंस। तो रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस या फिर रिव्यू जनरल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। कैलकुलेट करो रेशियोज ऑफ सेल्स रिटर्न्स टू सेल, calculate the ratio of sale return to sales and compare it with previous year and inquire for the reasons for increase and decrease। तो हमको सेल्स रिटर्न की रेशियो को जो है ना कंपेयर करना है प्रीवियस, पहले तो हमको कैलकुलेट करनी है रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न टू सेल, ठीक है। फिर उसको हमको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, फिर पूछना है कि अगर कोई इंक्रीज और डिक्रीज है तो पूछना है, इंक्वायर करना है, उसके रीजंस मांगने हैं उसके लिए। तो कैलकुलेट दी ratio of sales return to sales and compare it with previous year and inquire for the reasons for increase or decrease। अब चेक करो कि जो सेल्स रिटर्न है विथ सेल्स इनवॉइस चालान, चेक द सेल्स रिटर्न विथ सेल्स इनवॉइस चालान, क्रेडिट नोट, स्टॉक रजिस्टर एक्सेट्रा। Now, all sales made during the period were recorded and there is no understatement or overstatement। परफॉर्म करना कट ऑफ प्रोसीजर इंश्योर करने के लिए कि जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड है, रिकॉग्नाइज हुई है इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड और सेल्स वर नॉट टेम्पर्ड टुवर्ड्स द पीरियड एंड। नाउ कंप्लीटनेस। कट ऑफ एरर्स जो है यूजुअली अराइज करते हैं व्हेन कंपनीज, वही था कंपनी परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर्स पहले। फिर कट ऑफ एरर्स जो यूजुअली अराइज होते हैं व्हेन कंपनी जो रिकॉग्नाइज करती है रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेट ऑन विच द सेल्स इनवॉइसेस आर जनरेटेड रादर देन द डेट ऑन विच द रिस्क। तो कट ऑफ एरर्स तब अराइज होते हैं जब है ना हमको सेल्स तब रिकॉर्ड करनी है जब जो रिस्क और रिवॉर्ड जो है ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन हम सेल्स तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हमने इनवॉइस बनाया, तब जो है कट ऑफ एरर्स हो जाते हैं। So cut-off errors will usually arise when the company recognizes revenue based on the date on which the sales invoices are generated rather than the date on which the risks or rewards are transferred to the buyer। अब in order to perform a robust sale cut-off test, अब order to perform a robust sale cut-off test, auditor को जो है understand और consider करना है specific cut-off error risk each engagement का। तो auditor need to understand and consider the specific cut-off error risk of each engagement। Auditor needs to understand and consider the specific cut-off error risk of each engagement। फिर ऑडिटर को वेरीफाई करना है क्रेडिट नोट्स जो इशूड हुए हैं आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई द क्रेडिट नोट्स इशूड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। क्रेडिटर को सॉरी ऑडिटर को जो है वेरीफाई करना है क्रेडिट नोट्स जो इशू हुए हैं अकाउंटिंग पीरियड के बाद। फिर सम सेल्स टीम और सेल पर्सनल कैन मेक फिक्टिशियस सेल्स बिफोर द ईयर एंड टू मीट परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड कैंसिल आउट दोज विद अ पोस्ट ईयर एंड क्रेडिट नोट। हमको इसलिए क्रेडिट नोट वेरीफाई करना है क्योंकि कोई सेल्स टीम या सेल का पर्सनल जो है फिक्टिशियस सेल बना सकता है ईयर एंड पे परफॉर्मेंस टारगेट को मीट करने के लिए, और उसको कैंसिल आउट कर सकता है पोस्ट ईयर एंड की क्रेडिट नोट से। तो इसलिए हमको वेरीफाई करना ज़रूरी है क्रेडिट नोट जो इशू हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के बाद। फिर ट्रेस करो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू दी सेल्स जर्नल, ट्रेस फ्रॉम द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू दी सेल्स जनरल, trace from the shipping documents to the sales journal। Now चेक करो कि वेदर द क्वांटिटी इज अपीयरिंग इन द सेल्स रजिस्टर, क्वांटिटी जो है अपीयर हो रही है सेल्स रजिस्टर में और नॉट क्वांटिटी इज अपीयरिंग ऑन द सेल्स रजिस्टर और नॉट। एंड चेक करो रिकंसिलेशन ऑफ टोटल सेल्स गुड्स डिस्पैच एज पर स्टॉक रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स लाइक जीएसटी। फिर रिव्यू करना जीएसटी टैक्स को और जीएसटी रिटर्न्स को और इंश्योर करना कि सेम जो है रिकंसाइल्ड है रेवेन्यू रिपोर्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वेरीफाई करना रीजनेबिलिटी से ऑफ जीएसटी बाय अप्लाइंग द एप्लीकेबल रेट टू द ग्रॉस सेल्स वैल्यू और कंपेयर करना अमाउंट जीएसटी की एज पर स्टैट्यूटरी रिटर्न्स और एनालाइज करो रीजंस फॉर वेरिएंस इफ एनी। Then, trace करना few transactions from inception to completion. Trace of few transactions from inception to completion, that is examination in depth.
ट्रेस करना फ्यू ट्रांजैक्शंस को फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, दैट इज एग्जामिनेशन टिप। फ्यू सेल्स ट्रांजैक्शंस चेक करो फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर टू द पेमेंट ऑफ रिसीवेबल बैलेंस, every underlying document to ensure if it is properly recorded at every stage and measured accurately, taking into consideration all the incentives, discounts, if any. ऑडिटर को जो है अंडरस्टैंड करना है क्लाइंट के ऑपरेशंस को, रिलेटेड गैप इश्यूज को, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ सेल रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वेयर एवर एप्लीकेबल। तो एक तो हमने जिस टाइम पे सेल हुई उस टाइम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। दूसरा ये होता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वो 10% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो उस उतनी 10% सेल रिकॉर्ड कर ली, 50% हुआ है तो 50% करती, तो वो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है क्लाइंट का ऑपरेशन, उसके गैप इश्यूज, जैसे कि पॉइंट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ सेल रेवेन्यू रिकॉग्निशन वर्सेज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वेयर एवर एप्लीकेबल। फिर कंपेयर करो रेट्स ऑफ सेल्स इफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टीज, रेट ऑफ सेल्स इफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टीज, और रिव्यू करो उनको फॉर कलेक्टिबिलिटी। नाउ डिस्क्लोजर, सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, ग्रांट और डोनेशन रिसीव्ड, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, एक्साइज ड्यूटी लेस कर दी। फिर अब तो एक्साइज ड्यूटी क्या है नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम इंटरेस्ट, the financial services revenue under each of the above heads shall be disclosed separately by way of notes to accounts. Now other income comprising interest income, dividend। तो अदर इनकम हमको किससे हो गया, तो कोई म्यूचुअल फंड के सेल और लॉस से, इन्वेस्टमेंट के, या फिर फिक्स डिपॉजिट से, या फिर शेयर्स, दैट इज डिविडेंड। तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो any form of the income earned by an entity which is not linked to the entity's core business operations is generally classified as other income। तो कोई भी ऐसी इनकम जो एंटिटी को रिसीव हुई है जो लिंक नहीं है एंटिटी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से, हम उसको क्लासिफाई करते हैं एज अदर इनकम। तो एनी फॉर्म ऑफ इनकम अर्न बाय एंटिटी विच इज नॉट लिंक टू द एंटिटी का कोर बिजनेस ऑपरेशंस इज जनरली क्लासिफाइड एज अदर। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन एक्सेस फंड्स पार्क्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, the entity not being a bank or financial institution, या फिर interest on loans given to third parties within the group, या फिर return on mutual investment। तो interest income जो है on fixed deposit होती है, जिसको हम recognize करते हैं time proposition के basis पे, taking into account the amount outstanding and the applicable interest rate। So interest income on fixed deposit is recognized on the time proportion basis, taking into account the amount outstanding and the applicable interest rate, amount outstanding और applicable interest rate। Then dividend जो है recognize होता है statement of P&L में, right to receive payment, probable that economic benefit should flow to the entity, and amount of dividend measured reliably are are for right to receive payment of dividend established, probable that the probable that the economic benefits associated with dividend flow to entity or measured reliably। तो इंटरेस्ट इनकम फिक्स डिपॉजिट पे होती है, रिकॉग्नाइज होती है टाइम प्रोपोजिशन बेसिस पे, और टेकिंग द अमाउंट आउटस्टैंडिंग और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। डिविडेंड्स जो है रिकॉग्नाइज होते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L तब जब जो है राइट टू रिसीव, एंटिटी का राइट हो टू रिसीव पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एस्टैब्लिश हो गया। The entity's right to receive payment of the dividend established, and whether it is probable that economic benefits associated with the dividend will flow to the entity, या the amount of dividend जो है measure हो सकते हैं reliably। Now again जब ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो, ठीक है, in mutual recorded as other income on transfer of title from the entity and determined as the difference between the redemption price and carrying value of the investment। तो redemption price और carrying value of investment का difference।
Um, recorded other income was earned during the period occurrence other income earned during the ठीक है for अब verify करने के लिए interest on fixed deposit obtain करो list of fixed deposits open during the period obtain करना listing of fixed deposit जो obtain हो चुके open हो चुके during the period under audit along with applicable interest rate interest rate number of days एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ठीक है ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओपन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द डिपॉजिट वुड आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड फिर वेरीफाई करना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन वेरीफाई करो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो हुआ गया बाय द एंटिटी बाय रिकम्प्यूटिंग दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग द डिपॉजिट अमाउंट एंड द एप्लीकेबल रेट एंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो हुई है एंटिटी के द्वारा रिकम्प्यूट करके दैट इज मल्टीप्लाई करना डिपॉजिट अमाउंट को इंटरेस्ट रेट से और फिर उसको नंबर ऑफ डेज से वेरी इजी फॉर अब डिपॉजिट जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है एज एट द पीरियड एंड ट्रेस करो सेम टू द डायरेक्ट confirmations obtained from the respective bank फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो डिपॉजिट्स जो आउटस्टैंडिंग है पीरियड एंड तक उनको ट्रेस करेंगे टू द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिर ऑब्टेन करना कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम from the bank or verify करना that interest income as per bank reconciles to the calculation फिर copy of form 26 AS that is TDS withholding by the bank financial institution और reconcile करना interest reflected therein to the calculation shared by client अब डिविडेंड्स के लिए वेरीफाई करो कि सेम जो रिकॉग्नाइज हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में और एंटिटी का राइट है टू रिसीव द पेमेंट ऑफ एस्टेब्लिश और गेन और लॉस ऑफ स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी और डिफरेंस बिटवीन द रिडेम्पशन एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड नाउ फॉर द पर्पस ऑब्टेन द म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट ट्रेस द गेन एंड लॉस एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू गेन एंड लॉस नाउ डिस्क्लोजर इंश्योर करना फॉलोइंग डिस्क्लोजर अदर इनकम क्लास इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम और से तीन तीन चीज़ों में ही क्लासीफाई होता है अदर इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम और फिर नेट लॉस ऑन गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली attributable to such income. Then, note to be disclosed as additional information undisclosed income. The company shall give details of any transaction not recorded in the books of account that is surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the income tax unless there is immunity for disclosure under any scheme shall also state whether the previously unrecorded or written properly recorded in the books of account during the year.